Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 18 for the subject of classical mechanics. We are continued with the chapter number 3 of constraints for the BS 5th and the course code of your course is PHY 509. As we have derived the Lagrange equation and there are some of the examples we have already done. Now we are going to we have to do the another example 3 and going to explain that and another example of number 4 and explaining that and solution of that examples, and at the last we have some of the references. As we are working with the applications for Lagrange equation, we have the third example, that is find the equation of particle of mass m moving freely in the space. The particle of mass m moving in the space has 3 degrees of freedom, and thus the particle has generalized coordinates, 3 generalized coordinates such that q1 is equal to x, q2 is equal to y, and q3 is equal to z. Now for the kinetic energy, we have T is equal to 1 over 2 mv square, and we know that for the x coordinate we have velocity in the x component form 1 by 2 mx dot square, and for that the potential energy is V is equal to mg8, and that will be equal to mgx. Now moving to the next step. Now L is equal to T minus V. We have L is equal to 1 over 2 mx dot square minus mgx. L is equal to, kept taking m common, m into n by 2x dot square minus gx. The Lagrangian equations corresponding to the generalized coordinate axis is q1x. So d by dt partial L over partial x dot minus partial L over partial x is equal to 0. From above equation we differentiate the L with the respect to x dot. So partial L over partial x dot is equal to 2 by 2 into mx dot, and partial L over partial x is equal to minus mg into dx over dx, that will equal to minus mg. So from the above equation, putting these values in the above equation, d by dt into partial L over partial x dot minus partial L over partial x, we have d by dt into mx dot plus mg is equal to 0, as minus sign makes the minus sign when multiplication equal to plus. So from here mx double dot plus mg is equal to 0 and fx plus mg is equal to 0. We know that force is equal to F is equal to ma. Here acceleration is in form of the second differential of component, so that force will be fx is equal fx plus mg is equal to 0. Taking that mg from the left hand side, on the right hand side we have fx is equal to minus mg. Now for the point q2, generalized coordinate q2 is equal to y, we are going to do the same process. T is equal to 1 by 2 mv square, and that T will be equal to 1 over 2 my dot square. So from here V is equal to mgy. So for these equations, we are going to write the Lagrange L is equal to T minus V, and going to substitute these two values. So L is equal to T minus V, and L is equal to 1 by 2 my dot square minus mgy. Taking the m common, we have L is equal to m into 1 by 2 y dot square minus gy. Now the Lagrangian equation corresponding to the generalized coordinate y is d by dt into partial L over partial y dot minus partial L over partial y is equal to 0. Doing the same process, we have partial L over partial y dot is equal to 2 by 2 my dot, and the partial L over partial y, here that x is written mistakenly, so that is partial L over partial y is equal to minus mg into dy over dy is equal to mg. We are going to substitute these values in the above equation of Lagrange equation, part d by dt into partial L over partial y dot minus partial L over partial y is equal to 0. So we have d by dt into my dot plus mg is equal to 0, and my double dot plus mg is equal to 0. We have
Fy is equal to my double dot, so Fy plus mg is equal to 0, so Fy is equal to minus mg. Now similarly we are going to do the same process, and you can do easily. Q3 is equal to z. Here the kinetic energy is 1 by 2 mv square, and that will be equal to 1 by 2 mg square, and v is equal to mgz. We are going to write the Lagrange for that coordinate. We have L is equal to T minus V. L is equal to 1 by 2 mg square minus mgz. The Lagrange equation is partial L over partial L, d L over dt into partial L over partial z dot minus partial L over partial z is equal to 0. Here d by dt into mg dot plus mg is equal to 0. Mg double dot plus mg is equal to 0. Fz plus mg is equal to 0. And here you can see that Fz is equal to minus mg. अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लैग्रेंज इक्वेशन देखेंगे फॉर अ सिंगल पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ स्पेस। तो एक पार्टिकल जो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है उस पे लैग्रेंज इक्वेशन मुझे अप्लाई करके देखना है कि भाई क्या रिजल्ट्स आते हैं। आया वो रिजल्ट्स वही होंगे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आए थे। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। तो दो हिस्सों में मैं इस टॉपिक को देखूंगा। सिंगल पार्टिकल जो स्पेस में है, एक दफा मैं उसको लैग्रेंज अप्लाई करूंगा यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हम दूसरे हिस्से में पोलर कोऑर्डिनेट्स, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से लैग्रेंज अप्लाई करेंगे। तो ठीक होगी बात। दोनों के अंदर जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेट का फर्क आ जाएगा, जिससे आपके पास जो उसको डील करने का तरीका है, उसके लिए जो टूल है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। सिंगल पार्टिकल इन अ स्पेस हम देखेंगे। लैग्रेंज इक्वेशन हमने लगानी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। हम पहले से देख रहे हैं कि फर्ज करते हैं एक सिंगल पार्टिकल जो स्पेस में मूव कर रहा है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसका मतलब उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। वो एक्स एक्सिस की जानिब जा सकता है, वाई एक्सिस की जानिब जा सकता है, जेड एक्सिस की जानिब जा सकता है। मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं ना कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, जो उसकी मुकम्मल मोशन को समझा सकें। तो मिनिमम 3 चाहिए मुझे। ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट इसका ना जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उतने ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूं Q1, Q2, Q3। तो अब हमारे पास इसका ना 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो मुझे तीनों तरफ अलग अलग लैग्रेंज इक्वेशन को देखना पड़ेगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैंने अपनी आसानी के लिए क्या समझा हुआ है कि Q1 को X समझ लो, Q2 को Y समझ लो, Q3 को Z समझ लो। ओके होगी बात। मैंने शुरू में समझा दिया कि Q1 जो कोऑर्डिनेट है वो से मैं X लेके चलूंगा, Q2 को Y लेके चलूंगा, Q3 को Z लेके चलूंगा, है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगर मैं देखूंगा तो इसका ना 1/2 mv²। अब वेलोसिटी चूंकि वो स्पेस में है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, तो हमने लिखा vx² vy² प्लस vz²। अब हम जानते हैं वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने x डॉट y डॉट z डॉट के कंसेप्ट से लिख दिया। ये वेलोसिटी ही है मगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट से लिखा गया यहाँ पे। अब जनाब आपके पास अगर हम बात करें जनरलाइज फोर्स की, कि जाहिर सी बात है अब वो मूव कर रहा है तो हम वहां पे जनरलाइज फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे, तो उसके भी 3 कंपोनेंट आएंगे। तो इन जनरल मैं उसे कैसे लिख सकता हूं? Qj बराबर है d बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब आपने जो पढ़ी हुई है या हमने इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, यहाँ पे L होता है, L माइनस टी। याद है L इज इक्वल होता है T माइनस V के तौर पे। अब अगर आपके पास वहां पे कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका ना पोटेंशियल की चेंज हम नहीं देख रहे, तो वहां पे जो आपके पास T के लिहाज से जो आप लैग्रेंज इक्वेशन लिखते हो तो वो जनरलाइज फोर्स के बारे में आ जाता है। इसका लिंक मैं दे दूंगा लेक्चर का, जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में ये डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप ज्यादा डिटेल में से समझ सकते हैं। तो जनाब अब काइनेटिक एनर्जी बराबर है मेरे पास 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अब मैं समझता हूं कि भाई आपके पास वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, आपके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर मैं इस t को x
कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जी कोऑर्डिनेट के लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा तो वो तो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, जीरो हो जाएगा। इसी चीज को मैंने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी एक्स डॉट यानी डॉट वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ना कि आपके पास एक्स पे डिपेंडेंट है। तो अब इसी लिहाज से फिर अगर मैं टी को डिफरेंशिएट करता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं एक्स डॉट के लिहाज से, तो यहां से 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, एम एक्स डॉट आ जाएगा। सेम कंसेप्ट पे वाई के लिहाज से तो एम वाई डॉट आ जाएगा। अब ये आपके पास जनरलाइज मोमेंटा का कंसेप्ट आ रहा है, याद है कॉनिकल मोमेंटा का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो आपके पास वो यही टूल हासिल हो रहा था। ओके हो गया जनाब। अब अगेन मैंने काइनेटिक एनर्जी का टूल लिख दिया है। तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो V बराबर आ जाएगा किसके, V के भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे आपके पास। लैग्रांज इक्वेशन आपके पास मैंने लिख दी, इसमें L और T दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल भी मैंने कहा 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है। तो अब पहले मैं सिर्फ x कंपोनेंट को, पहले एक कोऑर्डिनेट को फोकस करता हूं, ठीक है। तो बिल फर्स्ट पहला कोऑर्डिनेट है x, तो मैं उसे q जो मेरे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसे x के बराबर मान लेता हूं। तो जनरलाइज आपके पास जो लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या है, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे। तो अब इस जगह पे क्यू जे की जगह मैंने x लगा दिया, x डॉट आ जाएगा, x आ जाएगा, वो इक्वेशन 4 बन चुकी है। तो अब जो इक्वेशन 3 में मेरे पास L का फंक्शन है, इसका मतलब उस L के फंक्शन को मुझे एक दफा पार्शियल x डॉट के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है और एक दफा x के लिहाज से करना है। तो इस L के फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं जनाब पहले x डॉट के लिहाज से। तो यहाँ पे x डॉट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर हासिल होगा, तो वो 2 नीचे उतरेगा, mx डॉट आ गया। ओके हो गया। अब मुझे पार्शियल एल और पार्शियल एक्स चाहिए, तो इसका मुझे एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। यहाँ पे तो एक्स कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी पोटेंशियल एक्स पे डिपेंडेंट है। तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, नेगेटिव साथ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि शुरू वाला फैक्टर तो 0 माइनस वी था ना, तो 0 माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। तो आप इसे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके होगी बात, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। अब दोनों वैल्यूज हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस कर दें? तो जब आप इक्वेशन 4 में प्लेस करेंगे तो आप डी बाई डी टी इस पे अप्लाई करेंगे तो ये डबल डॉट के साथ आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएंगे फिर नेगेटिव हो जाएगा। और ये हम जानते हैं फोर्स के बारे में होता है कि भाई आपके पास जो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई, जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये फोर्स के बराबर आ जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो आता है। इसी सोच पे हम क्या निकाल सकते हैं, वाई और जी कोऑर्डिनेट के लॉन्ग निकाल सकते हैं। तो वो जवाब यही आ जाएंगे, एम वाई डबल डॉट एफ आ जाएगा। मगर जब हम वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे तब मेरे पास जो लैग्रांज इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल वाई। तो इक्वेशन नंबर जो आपकी 3 है, अब इसको मुझे y के लिहाज से ट्रीट करना है, एक दफा z के लिहाज से ट्रीट करना है, तो जवाब सारा वही पैटर्न रहेगा, तो आपके पास सिमेट्रिकली ये जवाब आ जाएगा। अब ये तो बिल्कुल वही चीज होगी, डबल डॉट का मतलब है एक्सेलरेशन। तो अब आपके पास ये एक तरह से जो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशन है फिजिकल टू एम में, ये तो हमें वहीं तक ले गया। तो इसका मतलब जो लैग्रांज इक्वेशन है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लगती है तो वो बेसिकली हमें फोर्स तक ही ले जाती है। ठीक होगी बात। अब जो हमने चीज देखनी है वो सिंगल पार्टिकल को स्पेस में देखना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के तहत के अंदर। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो आर और थीटा का जिक्र आता है। इसका मतलब कोई चीज आर के लॉन्ग मूव कर सकती है, थीटा के लॉन्ग मूव कर सकती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कितने चाहिए होंगे, 2। लैग्रांज इक्वेशन भी फिर कितनी बनेगी, 2। दोनों के गिर्द मुझे देखना पड़ेगा ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स के गिर्द उस पर मोशन अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, आर थीटा को हम Q1 Q2 मान लेते हैं। ठीक होगी बात, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो हमने Q1 Q2 के नाम से पढ़े हुए ना, तो Q1 को R मान लो, Q2 को थीटा मान लो। ओके होगी बात। तो जहां मुझे Q1 लगाना था मैं R लगा दूंगा, जहां Q2 लगाना था थीटा लगा दूंगा, आप उसको इक्विवेलेंट समझेंगे। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने के लिए पहले मुझे कंपोनेंट तो पता हो। तो x कंपोनेंट किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, r cos थीटा के। y कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, r sin थीटा के। अब मैं जानता हूं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो
आपके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करती, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये जो एक्स की इक्वेशन आई हुई है, मुझे इसको वेलोसिटी बनाना है। तो मैंने क्या किया, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी कर दिया, जिसे मैंने एक्स डॉट का नाम दे दिया। अब मैंने कैसे लिखा इसे, अब मेरे पास जो इक्वेशन वन है इसमें दो एक तरह से वेरिएबल है, आर और थीटा। मैंने पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी था, तो एक दफा आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, सेम एक तरह से थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ताकि आर और थीटा का रोल मैं ला सकूं वहां पे। तो जनाबे वाला, क्या आप जानते हैं कि भाई आर को टी से जब आप डिफरेंशियल करोगे तो आर डॉट का कंसेप्ट आ जाएगा और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर साथ लिखा जाएगा। इसी तरीके से पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल टी को थीटा डॉट कह देंगे और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू मैं जानता हूं, r cos थीटा है, y की वैल्यू मैं अभी x की वैल्यू लगा लेते हैं, y के लिए अभी देखते हैं। तो r cos थीटा आ जाएगा और r sin थीटा आ जाएगा। जब आप r के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो सिर्फ cos थीटा ही बचेगा ना, इधर आप थीटा के लिहाज से cos थीटा करोगे माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर देखो क्या आते हैं, यहाँ पे r डॉट पहले से था, पार्शियल r से खत्म हो जाएगा cos थीटा, यानी r डॉट cos थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे थीटा डॉट पहले से था, r बाहर आ जाएगा और cos थीटा की जगह माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो आपके पास ये x डॉट आ गया, यानी वेलोसिटी आ गई अब आपके पास इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके हो गया। अब इसी तरीके से दोबारा मुझे y डॉट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के दो ही आपके कोऑर्डिनेट्स है ना, तो उसे दोनों के तहत आपने देखना है। तो आपने कहा y डॉट आ जाएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल t, उसी तरीके से r से पार्शियल r से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, थीटा से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आपके पास सेम उसी पैटर्न पे एक आर डॉट हो जाएगा, एक थीटा डॉट हो जाएगा। तो अब आप y की वैल्यू प्लेस कर दो, पार्शियल आर से कट जाएगा तो r साइन थीटा बचेगा, थीटा डॉट बाहर है, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो आर थीटा डॉट कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब आपके पास एक्स डॉट भी अवेलेबल है, वाई डॉट भी अवेलेबल है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज अब आप काइनेटिक एनर्जी के टूल में डाल सकते हैं, जो कि 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो जनाबे वाला ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब आपके पास x डॉट का भी स्क्वायर है और y डॉट का भी स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर लेके रख दिया। अब जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का कंसेप्ट आ जाएगा, इसे ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का कंसेप्ट आ जाएगा। तो आपके पास जब आप इसे देखोगे ये प्लस में आ जाएगा, एक सेम आइडेंटिकल फैक्टर होंगे मगर साइन अपोजिट होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एक फैक्टर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो 1 आ जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो आपके पास सेम इस तरीके से भी आप कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 m तो भी ब्रैकेट से बाहर है, तो क्या यहाँ पे आर डॉट स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बचेगा कॉमन लेने के बाद। तो आप वो सारे फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इक्वेशन 3 बन गई। तो जनाब अब आपके पास ये इक्वेशन 3 आ चुकी है। जनरलाइज फोर्स का कंसेप्ट हम दोबारा ला रहे हैं। तो अब आपने लिखा कि भाई आपके पास समेशन एफ आई पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू जे और बराबर है कैपिटल क्यू जे के, जनरलाइज फोर्स का ये टूल है। तो अब आप चूंकि एक पार्टिकल को भी डील कर रहे हैं तो समेशन तो ढेर सारों के सम के लिए यूज होती है, तो मैं सिग्मा की नोटेशन खत्म कर दूंगा, तो इसे सादा लिख दूंगा कि आपके पास क्यू जे बराबर आ जाएगा जे फॉर इज द कोऑर्डिनेट, चूंकि दो कोऑर्डिनेट है ना आर और थीटा, तो इसलिए अभी मुझे मेंशन करने के लिए उसका सहारा लेना है। तो एफ जनरल कर दिया, पार्शियल आर मैंने जनरल कर दिया, पार्शियल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे कर दिया, जनरलाइज फोर्स का टूल आ गया। अब अगर मैं सिर्फ आर कोऑर्डिनेट को देखूं तो क्यू के साथ देखो मैंने आर लगा दिया, तो क्या हमने पढ़ा था कि आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी आर को भी क्यू के प्लेस लाए थे, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब आपके पास यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा। क्या x की वैल्यू भी नाउन है, y की वैल्यू भी नाउन है, वो वैल्यू प्लेस कर देंगे तो r डिफरेंशियल करेंगे, r से कट जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ cos थीटा i प्लस sin थीटा j बचेगा, जो कि अब आपके पास एक r यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देगा आपको। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे तो आप कहोगे कि भाई अब आपके पास चूंकि दोनों की सिमत एक होगी,
क्योंकि आप फोर्स का भी तो वही कंपोनेंट देख रहे हो ना जो आर के अलोंग आपको लेके जा रहा होगा, तो आर यूनिट वेक्टर भी उसी जानिब होगा, तो आपके पास थीटा वन कॉस 0 1 आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सिर्फ एफ बचेगा, तो आप उसे एफ आर लिख दोगे कि जनरलाइज फोर्स आपके पास एफ आर के अकॉर्डिंग होगी फॉर आर कोऑर्डिनेट। फिर इसी तरीके से जब मैं थीटा कोऑर्डिनेट के लिए डिस्कस कर रहा हूँ तो उसी जनरलाइज फोर्स के फार्मूले को थीटा के अकॉर्डिंग लिख दिया, आर की वैल्यू उसी तरीके से प्लेस की, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स की वैल्यू लग गई आपने आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू लग गई आर साइन थीटा। यहाँ पे अब थीटा के लिहाज से आपने इसे डिफरेंशियल करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करने से। आर आप कॉमन ले लो तो रिमेनिंग में माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा आई जे बचेगा, तो आप इसे थीटा यूनिट वेक्टर के तौर पे पढ़ते हैं। आपको पोलर कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक में पढ़ाया था, उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ये थीटा यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका मतलब अब आप इसे कैसे लिखने वाले हैं, एफ डॉट आर थीटा यूनिट वेक्टर के तौर पे। तो अगेन अब आप वो फोर्स देख रहे हैं जो आपको थीटा के अकॉर्डिंग रोटेट करवाना चाहती है, ठीक है। तो अब इसका ना दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी, तो अब आप डॉट खत्म करेंगे तो आर तो कांस्टेंट के होने के नाते बाहर आ जाएगा, उसी तरीके से cos 0 1 हो जाएगा, थीटा यूनिट वेक्टर 1 होएगा, तो एफ बचेगा सिर्फ, तो एफ थीटा आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास इस पे वेक्टर सिंबल मैं खत्म कर देता हूं, तो अब आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, आर एफ थीटा के तौर पे आ जाएगा। ओके हो गया जनाब। तो अब चूंकि लैग्रांज इक्वेशन में मुझे जाना है, क्योंकि काइनेटिक भी हमने देखना है, पोटेंशियल अब हमें नहीं दी गई, तो पोटेंशियल को फोर्स की लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्विवेलेंट होता है फोर्स के बराबर, तो उस सेंस में हम सोच रहे हैं अब। तो अब आप जाते हैं जनरलाइज फोर्स का क्यू जे बराबर हो सकता है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे माइनस क्यू टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे। अब आपने क्या किया जनाब, क्यू आपके पास जो था ना उसको आपने फोर्स के बराबर लिया हुआ है, ये आपने कहा था कि क्यू आर बराबर है किसके, एफ आर के, तो वो आपने वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। तो अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी का टूल बनाया था वो था 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट। तो अब आप इस काइनेटिक एनर्जी के टूल को पहले r डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लो, फिर r के लिहाज से डिफरेंशियल कर लो, उसकी वैल्यू इक्वेशन 6 में प्लेस कर दो। तो अब आप जब वो वैल्यू इसको r डॉट के लिहाज से करोगे, r डॉट यहाँ पे नहीं है, 2 नीचे उतरेगा, m r डॉट बचेगा। यहाँ पे जब आप आर के लिहाज से करोगे तो 2 फिर नीचे उतरेगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो आपके पास एम आर थीटा डॉट स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 6 में प्लेस कर दी। जब आपने इक्वेशन 6 में प्लेस की तो आपके पास डी बाई डी टी आ जाएगा किसके, एम आर माइनस एम आर थीटा डॉट की। जब इसका डिफरेंशियल करोगे एक डबल डॉट लग जाएगा इस पे। तो अब आपके पास अगर आप एम कॉमन ले लेते हो तो यहां से आर डबल आर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बच जाता। मगर अगर आप इससे भी देखें तो ये सेंटीमीटर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अब आपके पास दिस फैक्टर। ठीक हो गया जनाब। तो अब अगर आप थीटा के लिए ये चाहते हो तो आपने अगेन प्रूव किया कि जनरलाइज फोर्स आपकी एफ थीटा के बराबर है। ठीक होगी। तो अब अगेन आपने भी जो काइनेटिक एनर्जी का टूल है दोबारा उसे देखना है। अब उसको अपने थीटा के लिहाज से, थीटा डॉट और थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल करना है। तो आपके पास यहाँ पे पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा डॉट चाहिए। तो आपने काइनेटिक एनर्जी के टूल को थीटा डॉट और थीटा के लिहाज से डिफरेंशियल कर लिया। क्योंकि अब यहाँ पे थीटा कहीं पे है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ थीटा डॉट है, तो इसमें थीटा डॉट वाले का आंसर आएगा, थीटा का जो आंसर ही नहीं आएगा तो ये फैक्टर तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो अब आपके पास इसे डिफरेंशियल करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जनाब किस तौर पे m आपके पास अगर आप देखो तो ये आपका क्या बन गया था, l के तौर पे आ रहा था। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर थी किसके, l के। तो अब आपके पास ये चीज r जो था इस r थीटा डॉट के बराबर है। ये आपका टॉर्क कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तौर पे हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी जो टर्म थी ये एंगुलर मोमेंटम को शो कर रही थी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्विवेलेंट आ जाता है किस चीज के, टॉर्क के। तो ये तो वही रिजल्ट आ गए जो हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़े थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एनर्जी के कंसेप्ट से चीजों को समझना शुरू किया तो अब हमारे पास रिजल्ट्स वही वेरीफाई हो रहे हैं जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स देती थी। तो ये कंपैरेटिवली आसान है आपके पास कि आप सिर्फ एनर्जी को डिस्कस करते हुए टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जनाब।
जो सादा सा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई कमेंट्स नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तब भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Now we are going to do another example of the Lagrange equation. Obtain the equation of motion of the single particle of mass m in the polar coordinate where the forces are acting on the particle is known. Now here we are going, so can see the figure. You can see that there is a x coordinate and having the value x is equal to r cos theta, and the y coordinate in which we have a radial component r whose unit vector is ar unit vector, and transverse component a theta dot a theta cap, and the vertical component of r is y is equal to r sin theta, and there is an angle theta between the horizontal component and r. Here are the two generalized coordinates. Q1 is equal to r, and q2 is equal to theta. Now going to work out that the particle m will have 2 degrees of freedom, so the general coordinates are q1 r is equal to q1 is equal to r, and q2 is equal to theta. From here we figure x is equal to r cos theta, giving that equation number A, and y is equal to r sin theta, giving that equation number B. In terms of polar coordinates, velocity v is equal to r a r unit vector plus r theta dot a theta cap, and v is equal to r dot a r unit vector plus r theta dot a theta cap, and taking a dot product between v and v, we have v dot v. So can see that r dot a r unit vector plus r theta dot a theta cap dot r dot a r unit vector plus r theta dot a theta cap. You can see that the only same components can be same components of or the unit vector can be multiplied and the other will be cancelled out. So we have v square is equal to r dot square plus r square theta dot square, and the other terms are neglected as they are equal to 0. So the t is equal to m1 1 by 2 mv square, and substituting that value of v square, that is 1 by 2 into m into r dot square plus r square theta dot square, that is written as in the equation number 6 c. As in this problem, instead of giving the potential energy, the forces of the particles are known as the Lagrange equation, that is d by dt into partial t over partial qi dot in the form of kinetic energy minus partial t over partial qj. Partial qj is equal to capital Qj. Here L is equal to T minus V, and potential energy not given, so L is equal to T. Here Qj is equal to summation I Fi dot partial Ri over partial Qj. So as we have the single particle, so Qj is equal to F dot partial R unit vector over partial Qj. As there are two generalized coordinates, so there will be two expressions for qj, that is qr is equal to q theta. For qr is equal to f dot partial r vector over partial r magnitude is equal to f dot partial over partial r into xi cap plus yg cap, f dot partial x over partial r I cap plus partial y over partial r. Substituting the values, f is into a f into partial r cos theta over partial r I cap plus partial r sin theta over partial r j cap. We have f dot into cos theta I cap plus sin theta j cap. Here f qr is equal to f dot ar unit vector is equal to f of r, giving that equation number A. As qr is the radial component of force, so now for the transverse component, q theta will be equal to f dot partial r over partial theta. Substituting the values, we have f dot partial over partial theta x I cap plus yj cap, and we have f dot into partial x over partial theta I cap plus partial y over partial theta j cap. Q theta is equal to f dot into partial r cos theta over partial theta I cap plus partial r sin theta over partial theta j cap. Differentiating with respect to theta, we have q theta is equal to f dot into minus r sin theta I cap, as differential of cos theta is sin theta, so minus sin theta was substituted, and I cap plus r cos theta j cap, as the differential of sin theta is cos theta, so taking the r constant r common,
we have q theta is equal to rf into minus sin theta I cap plus cos theta j cap, and from here you can see that sin theta I cap plus cos theta j cap is the transverse component of the force F theta. So we have can write q theta is equal to rf dot a theta cap minus is equal to rf theta, that is equation number b. From here you can see that q theta is equal to rf, that is the transverse component of the force. The Lagrange equation corresponding to the generalized coordinate are d by dt into partial t or partial r minus r dot minus partial t or partial r is equal to qr. Giving that equation, equation number a, we have partial t or partial r dot is equal to partial over partial r dot into 1 by 2 mr dot square, that will be equal to 2 by 2 mr dot. So the equation is mt over partial r partial t over partial r dot is equal to mr dot. Giving that equation, equation number 1, partial t or partial r is equal to partial over partial r into 1 by 2 mr square theta dot square. Partial t or partial r into 2 by 2 mr theta dot square. Cancelling the two terms, 2 by 2 we have partial t or partial r is equal to mr theta dot square, and giving that equation, equation number 2. Now putting these values in equation A, we have d by dt into mr dot minus mr theta dot square is equal to f of r. Mr double dot minus mr theta dot square is equal to f of r. Here you can see that mr double dot minus r theta dot square is f of r, radial component of force we have already discussed previously. Now generalized coordinates theta d by dt into partial t or partial theta dot minus partial t or partial theta is equal to q theta. Giving that equation, equation number b, partial t or partial theta is equal to 1 by 2 into 2 mr theta dot 2 mr square theta dot, and partial r over partial theta in the above equation will be equal to 0, as there is no term with respect to theta that can be differentiated with respect to theta. Putting these values in equation b, we have d by dt mr square theta dot is equal to r of theta, that is the transverse component of the force. Giving that equation, equation number c, we can see that l is equal to mr square theta dot. So from here d by dt into l is equal to r of theta dot, and giving that equation, equation number d, that is the result for that we have discussed in this example to solve out. अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है लैग्रांज इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसे प्रूव कर चुके हैं। देन आज हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनाब लैग्रांज फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं कि L इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी, वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर डॉट प्लस आर थीटा डॉट। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा जाए 1/2 mv स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी की ये वैल्यू प्लेस की जा सकती है। तो आर का भी स्क्वायर, आर थीटा डॉट का भी स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो अब जो पोटेंशियल है, इसका मतलब जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो आर और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। तो पोटेंशियल भी मैंने लिख दिया कि आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। अब आपने ये दोनों वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की लेके लैग्रांज फंक्शन में लगा दी। दैट का इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है ये पोलर कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में आ चुकी है। ठीक होगी बात। अब जो लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या है, डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल आर। जब आपने पहले पढ़ा था तो वहां पे क्यू डॉट था, यहाँ पे क्यू था, तो उसी पैटर्न पे मैंने अब इसे आर डॉट और आर कहा है। जब मैं इसे आर के लिए सॉल्व करूंगा, जब मैं इसे थीटा के लिए सॉल्व करूंगा तो फिर मैं इधर थीटा डॉट और थीटा कर दूंगा, वो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाला हूं। तो फिर वक्त तो मैं इसे आर के रेफरेंस से देख रहा हूं, आर कोऑर्डिनेट के लिहाज से। तो जनाब अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि एल की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है वो उठा के इक्वेशन 2 में लगा दी। तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दी
कि अब आपने के बाद जहां जहां एल आ रहा था वहां वहां वो प्लेस होगी। पहली जो ब्रैकेट है इसे आर डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल करना है और जो अगले वाली है इसको आर के लिहाज से। तो अब अगर देखा जाए पहले में आर डॉट है, यहाँ पे आर डॉट नहीं है, यहाँ पे आर डॉट नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये एक वैल्यू है आपके पास जिसपे आर डॉट है। जब आप अप्लाई करेंगे टू पावर नीचे उतरेगी, टू टू से कट जाएगा, एम आर डॉट बचेगा और वो किसके साथ आ जाएगा, डी टी के साथ। बाकी सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा जीरो, क्योंकि इधर भी आर डॉट नहीं है, इधर भी आर डॉट नहीं है। अब जब पार्शियल ओवर पार्शियल आर इधर डिफरेंशियल करना चाहेगा तो जनाब इधर आर डॉट है, इधर आर मौजूद नहीं है, इसका ना इसको तो डिफरेंशियल नहीं करेंगे तो कांस्टेंट एक तरह जीरो हो जाएगा। देन आपके पास आर स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, इसका आर मौजूद है, यहाँ पे भी आर मौजूद है। तो जब आप पार्शियल और पार्शियल आर को इधर लेके जाएंगे, इनसाइड डिफरेंशियल करेंगे, टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा, तो आर थीटा डॉट बचेगा और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर आ जाएगा। थीटा के लिहाज से तो नहीं कर सकते। तो अब आपके पास ये चीज जब मैंने डिफरेंशियल किया तो ये बाकी लिख दी, तो यहां से जो चीज आई थी वो डी बाई डी टी के साथ आ गई, ये नेगेटिव अंदर चला गया, दोनों वैल्यूज के साथ क्या आया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, तो वो लिख दिया गया। ठीक होगी बात, समझ आ गई। अब जनाब आपने एम को इधर अनसाइड मल्टीप्लाई किया, इधर भी एम इनसाइड मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या है, अब जनाबे वाला यहां से पोटेंशियल को मैं दूसरे एंड पे ले गया हूं, यहाँ पे डी बाई डी टी के साथ जब इसे दोबारा डिफरेंशियल किया एम आर डबल डॉट हो जाएगा। अब यहां से हम अगर कॉमन ले लें तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, क्या ये एक तरह से एक्सेलरेशन के लिए नहीं आ गया आपके पास, यानी पोलर कोऑर्डिनेट में जो एक्सेलरेशन होता है रेडियल कंपोनेंट का वो यही होता है। तो इसका मतलब आपके पास दूसरे एंड पे माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, यानी कि ग्रेडियंट का कंसेप्ट भी मौजूद है, तो हम इसे एफ आर लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पोलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट में सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो अब आपके पास वो चीज जो आपकी लग्रांज इक्वेशन थी वो आपको क्या देगी, वो आपको रेडियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स देगी। अब उसी इक्वेशन को जिसे मैंने टू का नाम दिया था, पहले मैंने आर के लिहाज से लिखा, अब मैं उसे थीटा के लिहाज से लिखता हूं कि भी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा, इसे मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं और इसमें एल सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस किया है। तो अब आपके पास जब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज प्लेस करने वाले हो तो अब पहला हिस्से में क्या आएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट से अंदर डिफरेंशियल होगा, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट सिंपल थीटा से आ जाएगा। अब पहले हिस्से में एम आर डॉट, इधर तो थीटा डॉट नहीं है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, यहाँ पे थीटा डॉट है, यहाँ पे भी सिर्फ थीटा है, इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा डॉट सिर्फ इसे सॉल्व करेगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो आप लिखोगे आर स्क्वायर, टू नीचे उतरेगा, टू टू से कट जाएगा, तो सिर्फ थीटा डॉट बचेगा। तो अब आप लिखोगे एम इनसाइड तरफ खा जाएगा, तो यहां से बचेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट और वो डी बाई डी टी के साथ आ जाएगा। इस तरफ चल जाओ, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा नहीं है, ये सिर्फ थीटा है, तो इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा सिर्फ आखिरी वाले कंपोनेंट को सॉल्व करेगा, डिफरेंशियल करेगा, तो माइनस इनसाइड जाएगा जब, तो पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा आ जाएगा आपके पास। तो बात समझ आ गई। तो आपके पास अब आपने थीटा डॉट के लिहाज से डिफरेंशियल कर लिया, यहाँ पे भी आपने क्या किया कि भाई अब आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे डी बाई डी टी के लिहाज से, तो एक दफा आर के अब चूंकि प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट आ जाएगा, एम कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल के भी कर सकते हो ना भी करो, तो पहले अब आपने थीटा को डिफरेंशियल कर लिया है, फिर डी बाई डी टी आर को सॉल्व करेगा तो टू नीचे उतरेगा, आर टू आर हो जाएगा, फिर आर का डिफरेंशियल लेंगे तो आर डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसे सॉल्व कर लिया है। अब ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा को दूसरे एंड पे ले जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां से अगर आप एम आर कॉमन उठाते हैं तो आर थीटा डॉट प्लस आर टू आर डॉट थीटा डॉट आ जाएगा। अब यहां से आर को दूसरे एंड पे ले जाएं तो 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा, ये अब आपके पास जो थीटा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। तो अब आपके पास एंगुलर बोल लो आप इसे, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो माइनस 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा होता है, तो जनाब इसे आपने थीटा लिख दिया। तो ये अब आपके पास कौन सी कंपोनेंट हो गई, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ गया। तो आपने देखा कि आपने एफ आर निकाला,
यहाँ से एफ थीटा निकाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैग्रांज इक्वेशन है जो एनर्जी को डील करती है, ये देती हमें एक तरह से डील किसको कर रही होती है, फोर्स को डील कर रही होती है। यानी जो किरदार फोर्स का होता है वही किरदार ये लैग्रांजियन इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अदा कर रही होती है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ए आर आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और जो ए थीटा था जिसकी वैल्यू मैं डिस्कस कर रहा था वो कोरोलियस थीटा होगा। अब आपके पास कॉन्जुगेट मोमेंटा इन पोलर कोऑर्डिनेट, यानी जनरलाइज मोमेंटम हम देखने वाले हैं किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में। अब मैं जानता हूं एल इज इक्वल टू टी माइनस वी है, एल के आपने टी और वी की वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। तो जनाबे वाला अब आपके पास क्या है, जबकि कॉन्जुगेट मोमेंटा का फार्मूला मैं जानता हूं कि पी जे पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे या पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाला जो कंपोनेंट है सिर्फ उसको लेके भी गुजारा हो सकता है। और अब आपने आर डॉट और थीटा डॉट के साथ चलना है। ठीक है, तो अब अगर आप चलो टी एल भी ले लो, एल में अब देखो ना आर डॉट इसमें नहीं है, थीटा डॉट भी इसमें नहीं है, तो पोटेंशियल वाला फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ काइनेटिक वाला फैक्टर ही बचेगा। तो अब आप जब आर डॉट के लिहाज से करोगे तो पहला फैक्टर ही आएगा सिर्फ, तो टू नीचे उतरेगा, एम आर डॉट बचेगा। ये आपका लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपके पास अगले में जब आप थीटा डॉट के लिहाज से करोगे तो वो ये अगला फैक्टर आ जाएगा, टू नीचे उतरेगा तो वो टू टू से कट जाएगा, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा, ये आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो आपका जैसे मैंने कहा पोटेंशियल आपका आर डॉट और थीटा डॉट पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए वो फैक्टर हमेशा जीरो हो रहा है बीच में। तो ये जनाब आपके पास क्या था, जनरलाइज मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट था। तो आपने देखा कि हमने काम बड़ा सादा सा किया है, लैग्रांज इक्वेशन ली, वहां से वेलोसिटी निकाल के काइनेटिक एनर्जी ली, काइनेटिक और पोटेंशियल का फार्मूला लैग्रांज फंक्शन में डाला, देन आपने उसे अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक दफा आर के रेफरेंस से एक दफा थीटा के रेफरेंस से उसे डिफरेंशियल कर लिया, लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वो दोनों फोर्सेस बन गई। एक फोर्स आपके पास कौन सी आ गई, सेंटीमीटर फोर्स कह लो, और एक दूसरी रेडियल जो आपकी एंगुलर कंपोनेंट फोर्स आ गया। तो यानी एक थीटा के लिहाज से आ गई और एक एफ के लिहाज आर के लिहाज से आ गई। फिर आपने कॉन्जुगेट मोमेंटा का कंसेप्ट देखा। Okay, so the key to Lagrangian and the place where it really shows its strength is in situations that are constrained in some way. So here's the case that I have here. There's like a plane with a block on it, and this plane can rotate like that. Okay, so you could imagine it moving at a constant velocity, so theta is some constant function of t or whatever. It doesn't really matter, omega t. Or it could jiggle back and forth. I'm going to do it generically, that just theta is not a constant number, okay? But other than that, I have that block and it can move up and down, it can slide up and down the plane, but it has to stay on the plane, it can't get thrown off, so maybe it's on a track, okay? So the Lagrangian says that if I calculate the kinetic energy minus potential energy for this in whatever coordinate system I want, whatever generalized coordinates, not even a coordinate system, but anyway, then the following, the world line will be that of the principle of least action. And this says that the equation of motion will be such that it minimizes the Lagrangian over the time interval. And if you want to minimize a function, then use the Euler-Lagrange equation, which says the partial of L with respect to one of the variables minus the derivative with respect to time of the partial with respect to the velocity of that variable is equal to 0. So let's just do this. The first thing we need to do is to find how many degrees of freedom do we have. So, I mean, how many ways could I like set up the situation? And the answer is just one. This block can only be at one place. Yes, the plane is moving, okay, but I'm not in control of that. That's some function. So I just need one coordinate to describe where this is, and I'm going to pick this, S, the distance up the plane. So if I know that in time, I know exactly where it is, right? I have to know the function of theta, but other than that, I know exactly where it is. So now I can find my kinetic energy and my potential energy. So I want to say kinetic energy, this has a mass m. I mean, I think that's obvious, right? T is 1/2 m x dot squared plus y dot squared. So x dot is the derivative of the x position with respect to time, and y dot is the derivative of y position with respect to time in Cartesian coordinates. Not in S, right? Because I can't write just S dot.
I don't know that really fully describes the kinetic energy. So if I get this in terms of x and y, and I get x and y in terms of s, I can figure it out. So let's say if this is my block and that's the angle theta, then this would be the adjacent side. So this is going to be cosine theta and that's sine theta. So I get the following. X equals s cosine theta. Y equals s sine theta. And yet theta is not constant, but that doesn't matter. That's still true. That's still the relationship between x and s. So now I can take the derivative of x. I can say x dot is going to be equal to the derivative of this with respect to time. So s can change, so I get s dot cosine theta. But theta can change too, so I also take the derivative of cosine theta. So I'll say plus s times, actually minus s times sine of theta times theta dot, right? Because I have to take the derivative of cosine theta with respect to time is negative sine theta, and then I have to take the derivative of the inside of that, which is theta, and the derivative of theta is theta dot. So I get that. Now let's do it for y. Y dot is going to be equal to s dot sine theta plus s cosine theta theta dot, taking the derivative of sine theta. So now I can write down my kinetic energy term. So T equals 1/2 m. I'm going to put in x dot squared, so I'm just going to square this whole thing. Okay, I have to square this. So let's just do that. It's going to be s dot squared cosine squared theta, and then I'm going to get this times this plus this times this, so I'm going to get 2 of these. So I'm going to get minus 2 s dot theta dot cosine theta sine theta, right? So what I had s dot, s, and a theta dot. I put them all in the front. And then I get this squared, so I get plus s squared theta dot squared sine squared theta. Oh, that's not closed yet. Now I have to do the y. So y is going to be s dot squared sine squared theta, and then I'm going to get plus 2s dot theta dot cosine theta sine theta. Yes, that cancels. And then I'm going to get this, which is going to be plus s squared theta dot squared cosine squared theta. Now I can close the parentheses. So if I look, let's cancel some stuff. So this and this cancel. And then over here I have s dot squared cosine squared theta plus s dot squared sine squared theta. If I factor out the s dot squared, I get cosine squared plus sine squared, which is 1. And the same thing's true over here. Sine squared plus cosine squared is 1. So I get 1/2 m s dot squared plus s squared theta dot squared. And now if you're looking at this and saying, well, hey, that's just the kinetic energy in polar coordinates. Yeah, it is. Okay? And you're saying, well, hey, you could just do this in polar coordinates. Yes, you could. But this is theta dot is the derivative of this function theta, which I don't actually know. Okay, so let's just leave it like that. It's actually more important. So now I can write down the Lagrangian. L is going to be this. Oh, I need U. U is going to be mgy. But y is equal to this, so it's mgs sine theta. Now I get L equals 1/2 m s dot squared plus s squared theta dot squared minus mgs sine theta. That's my Lagrangian. Okay, so now we're gonna apply the Euler-Lagrange equation. So I'm gonna take the partial of L with respect to S, the partial of L with respect to S dot, take the derivative, and set these two equal to each other. Okay, so let's first do the partial of L with respect to S. Okay, so here's an S term, so I'm going to get the partial with respect to S is going to be 2 times that, but I have a 1/2 m. So I get m
s theta dot squared. That's that term. Now I have this term. I have negative mg sine theta. So the derivative of this, the only thing, the partial of this with respect to s, the s just goes to 1. So I get minus mg sine theta. There is minus mg s sine theta, and the s goes to 1. Okay, now the partial of L with respect to s dot. So there's only one s dot term in here. It's right here. So I get 2 over 2 m s dot. So m s dot. Now I can take the derivative of that with respect to, I don't need this anymore, with respect to s dot, or with respect to t, and I get m s double dot. So this term has to be equal to this term, so I can set them equal, and I get m s double dot equals m s theta dot squared minus mg sine theta. The masses cancel, so I get s double dot equals s theta dot squared minus mg sine theta. Okay, so let's just first check, and let's say theta as a function of t equals theta 0. It's a constant. If theta is a constant function, then this term is going to go, theta dot's going to be 0. So I'm going to get s double dot. The acceleration is that canceled. Sorry. Negative g sine theta, which is the acceleration of a block down a plane. Okay, so that's good. If theta as a function of t equals omega t, then theta dot is going to be equal to omega. And so then I get s double dot equals s omega squared minus g sine theta. So this says that the acceleration has two components, right? This is the centrifugal force pushing it away. Actually, I can move this back to on the other side. I can say s. Yeah, let's do it that way. That is what it is. This is the component because of the rotation that wants to push it away, and this is the component pulling it down. And you could get the balance, so it just perfectly. No, you couldn't. It only balanced for a second. So this would be, you could imagine this thing rotating with the block. It's rotating that way. At some instant, these two could be equal, but it wouldn't be equal forever. So that it could stay, have a zero acceleration. I think and this force, this term wants to push it up, and this term wants to push it down. I'm thinking there's some interesting things we could look at here. I wonder if you could start with the plane all the way down, like this, and then, and with the block in the middle. Do you think I could get the block back down over here on that side? I'm not really sure. Down at the bottom. Because if I don't think there's anything that would push it that way in the frame of the table. But what I want to do now is take this and model it in Python, where I can have any theta function I want. I could have theta where it oscillates back and forth like this, or a constant theta, and then we can explore the motion of that better. But we have the equation of motion. We can just solve for it however we want, and that's where I'm going to stop right there. Till here you have already understood the topic. If there is any difficulty in the understanding of the mathematical work, you can ask me. Thank you. Here are the similar references you are already discussed about the books you can follow. Thank you. Allah Hafiz.